गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक को हमने लिया है, द टॉपिक इज हाउ वी शुड इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स बिफोर द पीपल। When we talk about introducing ourselves, we always realize that this question is very easy, that we can answer easily, but let me assure you, this is the question that if you encounter, you will definitely face the problem if you are not prepared well. Introduction is asked at the time of job interviews. It is also asked at the time of public meetings. So suppose if you have attended some party and there you meet somebody new and you are told to introduce yourself, then the most problem that you face कि what should I speak? और क्या क्या हमें अपने इंट्रोडक्शन में बोलना है, कैसे बोलना है, क्या हमें चीज़ें करना चाहिए, ये सारी बातें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। और टॉपिक हमने वैसे ही लिया है, तो लेट मी स्टार्ट विद द टिप्स ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन। जो सबसे पहली चीज़ है जॉब इंटरव्यूज को फेस करते समय, मीन्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर आस्क्ड मीन्स वी हैव टू सबमिट आवर रेज्यूमे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देयर आफ्टर वी आर आस्क्ड फ्यू questions, but they are meant for the same. You can be asked, tell me about yourself. You can be asked, would you make me like to go through your CV? CV means curriculum vitae, that is another name for resume. Another you may ask, would you please let me know about yourself? और सारे के सारे इन questions का मतलब एक ही है, that you have to speak, you have to introduce yourself. अब अपने बारे में बोलते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को हमें यहाँ मेंशन नहीं करना है, क्या हमें मीन्स मेजर्स लेना चाहिए, कौन से प्रिकॉशनरी ऐसे स्टेप्स हैं। बट लेट मी टेल यू, इफ़ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेल, दैट इज़ इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट एंड दैट मेक्स द डिफरेंस between you and the other candidates. I'm not talking about the job interviews only. Many of the times we are invited on a dais and thereafter we have to introduce ourselves. पोडियम पे आके आधे लोगों को तो वैसे ही बुखार आ जाता है. Even I feel myself sometimes frustrated because if I am suppose some new audience, तो हमें लगता है कि यार what should I speak to them and what I should not. Suppose if I am teaching in a class, that is quite easy to introduce myself to my children because they have come there with the perspective that they want to learn the lessons and I have to teach them. But so far as the matter of introducing yourself in any particular place is concerned where you are not aware कि लोग किस कैटेगरी के हैं, what their perspective is, what they are looking in you and what exactly they want कि आप किन किन चीज़ों को बोलें। लेकिन एक जनरल वे में इफ वी ट्राई टू समराइज कि हमें किन चीज़ों को मेंशन करना चाहिए और किन्हें नहीं मेंशन करना चाहिए, सो हम इन चीज़ों को ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ दैट यू मस्ट स्पीक अबाउट who are you. Who are you can be answered well. It can be answered as my name is, or it can be answered as I am. There are few people you may have seen कि वो अपना जब इंट्रोड्यूस मीन्स जब वो who are you का आंसर करते हैं तो they say myself. I must make you certain that myself, using myself while introducing yourself while answering who are you is wrong. Grammatically it is wrong, though in the informal way of the language that may suit and one thing that you must try not to follow is not to answer that who are you as myself. हमेशा अपने आप को बोले I am or my name is because these are the two things जो grammatically भी correct है and that indicates how sound you are in your language. तो ये हो गया आपका सबसे पहला हु आर यू का। दूसरे नंबर पे जो आपको क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड कि आप बड़े सिस्टमैटिकली वे में आपको जवाब दें। वैसे इसको आंसर करने के लिए देयर आर मैनी थिंग्स। यू कैन स्पीक एज आई एम फ्रॉम, you can speak suppose if you have walked a long distance, you have come from a long distance and there you need to introduce yourself to the public and then you can say I come from, suppose like I belong to Lalitpur, and suppose if I go to Mumbai and there the people ask me about my
profile about where I belong to, तो I'll say I have come from. तो आप ये I have come from या I come from का यूज तब करें when you are at a very large distance. Instead आप चाहें तो suppose if you are introducing yourself in a nearby cities or from the in your city yourself, in your city itself, तो आप where are you from का आंसर करें either I am from or my city is, or you can also say I belong to. बेसिकली बिलोंगिंग भी काफ़ी कई बार हम अलग अलग शहरों में जाके रिजाइड करने लगते हैं और वेल रिजाइडिंग वी कम टू द मतलब हम कई बार दूसरे शहरों में सेटल हो जाते हैं और सेटल के दौरान तो हम जैसे मीन्स इफ़ यू टॉक अबाउट अस, तो आई बेसिकली बिलोंग टू कानपुर बट माई पेरेंट्स शिफ्टेड इन ललितपुर in 1987. So at that time I was only 8 years old and I'm quite localized to Lalitpur. I don't have many memories regarding Kanpur. So means when you have to speak about you basically belong, where you basically belong to, so if you have to mention ki where you basically belong to, like many people belong to some place, so they may say I basically belong to that place but now we have settled to that city. So this is the second question that you have to answer. Third question that you need to mention is what is your qualification? At the time of mentioning your qualification, there are 2-3 things that you need. मीन्स इंट्रोडक्शन कैन बी आस्क्ड टू मैनी, और जब हम उस इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सपोज इफ वी आर आस्किंग समबडी हु इज़ 25 to 40 और 45 ईयर्स ओल्ड, तो वो एट दैट एज वो अपनी मोस्ट ऑफ द एजुकेशन कंप्लीट कर चुका होता है. और सपोज इफ वी आर आस्किंग समबडी हु इज़ ओनली 15 और 20 ईयर्स ओल्ड, तो वैसा व्यक्ति क्या बताएगा अपने बारे में, क्योंकि मीन्स ही इज स्टिल परसुइंग इन सम पार्ट ऑफ एजुकेशन. So what is your qualification? Like if you ask me कि अगर हमसे कोई पूछे कि what my qualification is, तो I'll say I was means my schooling is from Government Inter College Lalitpur and so on. और सपोज अगर हम किसी कोर्स में if we are studying, तो हम वहाँ हम बोलेंगे I am pursuing in, हम अपनी स्कूलिंग के बारे में बता देंगे और स्कूलिंग के बारे में मीन्स I have completed my schooling from, और उसके बाद जो हम सेकंड चीज़ बताएंगे लाइक आई एम परसुइंग इन, और अगर आप अपनी कंप्लीट कर चुके हैं स्कूलिंग ज़रूर बताएं बिकॉज स्कूलिंग मैटर्स अ लॉट. दूसरा नंबर, स्कूलिंग के समय देर आर मेनी थिंग्स दैट वी लर्न. स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी गेट द मोस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी लर्न द डिसिप्लिन फर्स्ट. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी लर्न टू अकोमोडेट विद द पीपल, क्योंकि वहीं हमारे सबसे ज़्यादा दोस्त बनते हैं एंड दीज फ्रेंड्स वी नेवर गेट इन आवर लाइफ्स. और बाकी बचा आगे का, तो मीन्स जब आप ये अपनी स्कूलिंग जरूर मेंशन करें, और स्कूलिंग मेंशन करने के बाद आप सेकंड चीज़ जो आपको मेंशन करना है वो कि सपोज इफ़ यू आर परसुइंग इन सम पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो आप वो बोलें, और इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सम सोर्स, तो आप उसको बोलें. सो आई हैव कंप्लीटेड और आई एम परसुइंग इन. दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट नंबर पे आपको जो चीज़ जवाब देना है दैट इज योर व्हाट नॉट इज आर your hobbies. सिंपल क्वेश्चन है बट लेट मी अश्योर यू कि इससे कठिन जवाब नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूजुअली व्हेन वी लिसन टू द पीपल, हम उनकी हॉबीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. लाइक इफ़ यू आस्क इन इंडिया की बहुत सारे लोग व्हाट आर देयर हॉबीज़, तो दे मे से दैट दे लाइक रीडिंग बुक्स, दे लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट, दे लाइक दैट. हॉबीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हम डे टू डे रूटीन में करते हैं, और उस शेड्यूलिंग में हॉबी किसी भी व्यक्ति की वो होती है दैट ही और सी इज़ एक्सेल्ड इन. इन केस यू आर नॉट एक्सेल्ड इन समथिंग, आप उसे अपनी हॉबी कैसे मानेंगे? सपोज इफ़ यू समटाइम्स कुक, तो वो कुकिंग आपकी हॉबी नहीं हुई, वो सिर्फ आपका इंटरेस्ट है फॉर सम टाइम. तो हॉबीज़ बोलते समय यू नीड टू बी वेरी मच क्लैरिफाई कि आपको क्या बोलना है, व्हाट योर हॉबीज़ आर. और इसको बोलते समय झूठ कभी ना बोलें, क्योंकि अगर आपने सपोज अगर आपने दूसरे को कॉपी कर लिया, लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल.
जैसे हमें तो बुक्स पढ़ना कभी कभी पसंद है, लेकिन हमारी बुक्स का एक पर्टिकुलर सेट है, हम क्या पढ़ना पसंद करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। बट सपोज इफ समबडी इज आस्क्ड कि व्हाट हिज और हर हॉबीज़ आर, तो वो पर्सन अगर इसको आंसर कर दे कि लाइक माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, तो अगर आपसे कुछ फर्दर क्वेश्चंस उसने पूछ लिए ना, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, चलिए आप इसका भी और आंसर कर दें कि आई लाइक स्टोरी बुक्स, और आई लाइक मोटिवेशनल बुक्स, और आई लाइक द बुक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा, आई लाइक टू रीड द बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द पीपल। बट जब वो जैसे वो फर्दर जाता है, हु इज जो फेमस राइटर ऑफ स्टोरीज, अब आप फंसे क्योंकि आपने झूठ बोला। और इन केस अगर आपकी हॉबी रीडिंग करना है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। तो हॉबीज़ बताते समय आप पर्टिकुलरली इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि आप हमेशा पहले तो सच बोलें, और जो आपकी हॉबीज़ हैं, जेन्युइनली जो आपकी हॉबीज़ हैं, आप उन्हीं को मेंशन करें। आपकी हॉबीज़ देखिए, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आपकी हॉबीज़ आपको डिफाइन करती हैं, बट आई नेवर से कि आप इनको किसी को कॉपी करके बोलें। आप हमेशा अपनी उन हॉबीज़ को बोलें जो जेन्युइन है, और अगर आपकी हॉबीज़ आपको लगता है कि वुड नॉट अफेक्ट द पर्सन, तो आप बड़े सिस्टमेटिकली उसको समझने की ये कोशिश करेंगे, भाई ये हमें अपनी हॉबी चेंज करना चाहिए कि हमें मीन्स आई शुड इंडल्ज माई सेल्फ इन सम अदर हॉबी, जहाँ पे हम मीन्स इफ़ आई टेल द पीपल। और दूसरा क्या है, कहने का एक तरीका होता है, लाइक आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, और स्पेशली नाउ अडेज, अर्लियर जब वीडियो गेम्स चला करते थे, उन वीडियो गेम्स को चलाते समय वी हैड मैनी थिंग्स, वी हैड टू गो टू सम पर्टिकुलर शॉप, और वहाँ पे हम वीडियो गेम्स खेला करते थे। बट आज के समय में सिंस मोस्ट ऑफ द गेम्स आर अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ, तो हम उस मोबाइल फ़ोन पे ही देखा होगा आपने, देर आर मैनी पीपल और देर आर मैनी चिल्ड्रन हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर और ऑन मोबाइल। तो आई लाइक प्लेइंग मोबाइल, दो इट इज़ नॉट अ गुड हॉबी। क्यों? क्योंकि अगर लोग ये कहें कि मीन्स सिटिंग कॉन्स्टेंटली इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन would not be good for our eyes, it would not be good for our motions as well, we should keep on moving etc। तो इन सारे, तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है सर, आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, आई लाइक प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल, बट माई पर्टिकुलर थिंग इज़ कि हमें वो गेम्स जब तक हम उसकी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, ये हमें पेनिक होता रहता है। मतलब इफ़ आई एम अवे फ्रॉम दैट गेम, आई कीप ऑन थिंकिंग कि यार हम किसी पर्टिकुलर स्टेज को कैसे पार करेंगे, तो वही जो आपकी जो नेगेटिविटी है उस हॉबी की, वो आपकी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंटेशन। बट व्हाट आर योर हॉबीज़, आप इन हॉबीज़ को मीन्स हमेशा वैसे इंट्रोड्यूस करें जैसा आप की हॉबीज़ हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ मेंटेन करना है व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योर हॉबीज़ की, वो पॉजिटिव साइड उसका लोगों की नज़र में आना चाहिए, और वो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि जब लोग आपको सुनते हैं, जैसे हम किसी मूवी को देखते हैं, तो मूवी को देखते समय हम उसका क्या पर्सपेक्टिव है हमारा, हम या उससे क्या मोरल लेसन ले लेंगे, दैट मेक्स द डिफरेंस। तो हम व्हाट आर योर हॉबीज़ को बोलते समय मीन्स इफ यू हैव कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हॉबी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है, तो आप उसे पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करने का काम भी आपका है। सो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका कि व्हाट योर हॉबीज़ आर। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्पीक इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है। Somebody is good at playing, somebody is good at doing something, somebody is good at mechanical job, somebody is good at different type of jobs। तो स्ट्रेंथ के बारे में तो ये है, लाइक आई माई सेल्फ बिलीव कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप कितने बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को बोलते हैं, दैट डू नॉट हर्ट द पीपल, और वो उसको मतलब इंजॉय करते हैं आपको सुनना। सो स्ट्रेंथ कई सारे लोगों की कई सारी हो सकती है, लेकिन कुछ जो स्ट्रेंथ हमारी हमेशा होना चाहिए, दे आर वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आशावादी होता है, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक माने सपोज इफ वी हैव कम अक्रॉस सम हर्डल इन आवर लाइफ और देयर वी आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, तो वो डिफिकल्टीज सब कुछ नहीं है, उन डिफिकल्टीज को वी कैन ओवरकम, और वो ओवरकम हम कर सकते हैं ओनली व्हेन वी हैव सम पॉजिटिव एटीट्यूड। एट दैट पॉजिटिव, लाइक इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन, मोस्ट ऑफ द
people have lost their jobs, especially those who are working in private in the industries और industries ने काम करना बंद कर दिया. We can see कि वो अपनी अपनी jobs खो चुके हैं और now they are hand to mouth, they are striving to get some job और they are waiting कि कब ये कोरोना जैसी पैंडमिक ख़त्म हो और they must get to back to their jobs. लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी हमें हार नहीं मानना चाहिए. हार नहीं मानने का मतलब कि आपको अपना बेस्ट करना चाहिए. जो भी आपको फ्री टाइम मिला है, लाइक फ्री टाइम हमें बड़ी लकीली मिलता है और इस फ्री टाइम को हमें अपने किसी प्रोडक्टिव वे में लगाना चाहिए. वो प्रोडक्टिव वे जो हमें कुछ अपडेट भी कर सके और हमें पॉलिश भी कर सके. तो ये हो गई सारी आपकी चीज़ें. नाउ द लास्ट थिंग, अगर इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन अ जॉब इंटरव्यू, तो वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. व्हाट आर योर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आपके लक्ष्य हैं, आप जीवन में क्या हासिल कर. और कैरियर ऑब्जेक्टिव, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम जॉब इंटरव्यू और सपोज इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, तो वाइल स्पीकिंग अबाउट योर कैरियर ऑब्जेक्टिव, आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं. यहाँ एक और जनरल क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है, एंड दैट जनरल क्वेश्चन इज कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years. अब 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, इसका क्वेश्चन बड़ा कठिन हो जाएगा. तो आप बड़े सोच समझ के इनका जवाब दें. ये सब मतलब अगर आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद दीज, आप अपनी फैमिली के बारे में ना बताएं, बिकॉज द लिसनर इज़ नॉट मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वेदर योर फादर इज़ एन IAS और IPS और इंजीनियर और व्हाट्सोएवर. मतलब आई एम नॉट हर्टिंग दैट. यहाँ समझने की बात ये है कि इफ़ दे आर रिक्रूटिंग यू, इफ़ दे आर अपॉइंटिंग यू, तो वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं. वो जानना चाहते हैं कि आप क्या हो, नॉट योर फैमिली. तो व्हेन यू से व्हाट आर यू, तो उस व्हाट आर यू का आंसर इन सब में पर्टिकुलरली आपको कैटेगराइज करना है. फर्स्ट आंसर आपका हु आर यू है. द सेकंड इज वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर इज योर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स. और इन सब का आंसर करने के बाद एक और कैजुअल ग्रीटिंग्स हम वो बताना भूल गए थे इन द बिगनिंग. कहीं भी इंट्रोड्यूस करते समय कैजुअल ग्रीटिंग्स को आप ज़रूर फॉलो करें. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस की वो कैसी है. इफ़ यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स, तो यू नीड नॉट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद अ फॉर्मल ग्रीटिंग लाइक गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून एटसेट्रा. इंस्टेड यू कैन जस्ट से हेलो एवरीवन. Or if you are addressing yourself before somebody whom you consider कि आपको उन्हें formal greeting ही करना पड़ेगा, you cannot be friendly to them क्योंकि वो आपसे एज में भी बड़े हैं. और suppose if interviewer is asking you the question, तो interviewer का question पूछते समय आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या मतलब उसका पर्सपेक्टिव है. तो आप जब इन सब को वो ग्रीटिंग्स ज़रूर आप वेल मेंटेन रखें. ग्रीटिंग का वीडियो अपन ने हमने कल शेयर किया था, उसको आप एक बार क्लिक ज़रूर करें. वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे हम अपने आप को कैसे हम ग्रीट करें टू द पीपल. अब इन सब को देने के बाद जस्ट से थैंक यू. आज का वीडियो इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ के बारे में ही था. बाकी के नेक्स्ट वीडियोस में आई विल ट्राई टू मतलब अब हम बेसिक्स जो कम्युनिकेशन के लिए, जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं, उन चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमें लैंग्वेज को बोलते समय हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड हाउ कैन वी एक्सेल इन दैम. सो इन कमिंग वीडियोज़ में उसको चलते हैं. नेक्स्ट थिंग अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियोज़ क्योंकि ये ही आपको नोटिफिकेशंस भी देंगे एंड विल ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा मोटिवेटिंग भी हो जाती हैं क्योंकि जब आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं और व्हेन आई सी सम वेरी गुड थिंग्स, तो हमें लगता है कि आई एम डूइंग माई वर्क वेल. और आपके जो कमेंट्स हैं और आपके जो व्यूज़ हैं ऑन माई वीडियोज़, वो एक तरीके की मोटिवेशन देते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.